ایک خبر شامل کریں گے۔ کراچی پریس کلب پر حملے میں 2 افراد زخمی ہو گئے، جبکہ مشتعل افراد نے ایک نجی ٹی وی چینل کی گاڑی کو بھی آگ لگائی اور میڈیا نمائندوں سے کیمرے اور دیگر سامان بھی چھین کر لے گئے۔ کراچی پریس کلب میں نامعلوم افراد نے داخل ہونے کی کوشش کی، منع کرنے پر مشتعل افراد نے فائرنگ کی اور پریس کلب کے باہر موجود گاڑیوں میں توڑ پھوڑ کی۔ حملہ آوروں نے پیٹرول ڈال کر نجی ٹی وی چینل جاگ کی گاڑی کو آگ لگانے کی کوشش کی، جبکہ جاگ اور 92 چینل کے عملے سے 2 کیمرے اور دیگر سامان چھین کر فرار ہو گئے۔ بھگدڑ سے 2 افراد زخمی بھی ہوئے۔ پولیس نے شیلنگ کر کے مشتعل افراد کو منتشر کر دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ اور وزیر داخلہ سہیل انور سیال نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے ایڈیشنل آئی جی کراچی سے رپورٹ طلب کر لی ہے۔ صحافتی تنظیموں نے بھی واقعے کی شدید مذمت کرتے ہوئے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرامین فرحان الیاس کے ساتھ سلیمان سعادت خان، جیو نیوز کراچی۔ ایک بار پھر بات کریں گے۔ انتہائی افسوسناک اور دکھ بھرا دن رہا پوری قوم کے لیے، پورے ملک کے لیے۔ لاہور میں انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ گلشن اقبال پارک میں آج دھماکہ ہوا۔ شام 6:40 پر یہ اطلاع آئی کہ وہاں پر زوردار دھماکے کی آواز سنی گئی ہے، اور پھر جیسے ہی سٹوری سامنے آتی رہی، واقعے سے متعلق مزید آگاہی ہوتی رہی اور پتہ چلا کہ خود کش دھماکہ کیا گیا تھا، اور اب یہ اطلاعات آئی ہیں کہ اس میں 60 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ علامہ اقبال جان اور آس پاس کے علاقوں میں جہاں اس دھماکے کی گونج سنائی تھی، تمام لوگ جو ابتدائی طور پر دھماکہ سن کر پاک کی جانب آئے، اب تک ان کے دل دہلے ہوئے ہیں، اور پورا لاہور، نہ صرف پورا لاہور بلکہ پاکستان کا ہر شہری اس وقت غم و اندوہ میں ڈوبا ہوا ہے۔ 60 افراد اپنی جان سے چلے گئے ہیں، جن میں بیشتر معصوم بچے اور عورتیں ہیں۔ 300 افراد زخمی بتائے جا رہے ہیں، اور اہل لاہور اس وقت پہنچ رہے ہیں اسپتالوں میں، جہاں خون کی عطیات کی اپیل کی جا رہی ہے۔ لاہور واقعے سے متعلق ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ کچھ دیر پہلے ہم نے آپ کو اسلام آباد کی صورتحال سے آگاہ کیا۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے کہ حکومت نے اسلام آباد میں فوج کو طلب کر لیا ہے۔ ایک بڑی خبر آپ کو دے رہے ہیں۔ اسلام آباد کی جو صورتحال ہے اس کے بعد اب یہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے اسٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے کہ حکومت نے اسلام آباد میں فوج طلب کر لی ہے۔ ایک بار پھر ہم آپ کو آگاہ کریں، ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے سوشل میڈیا پر یہ سٹیٹمنٹ جاری کیا گیا ہے کہ حکومت نے اسلام آباد کے لیے فوج کو طلب کر لیا ہے۔ حکومت نے اسلام آباد میں فوج طلب کر لی گئی ہے، اور فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی جانب سے اب اس بات کی تصدیق کی جا رہی ہے، آگاہ کیا جا رہا ہے۔ راولپنڈی کے لیاقت باغ میں سابق پولیس کانسٹیبل ممتاز قادری کا چہلم ہوا، جس کے بعد سے وہاں سے بڑی تعداد میں مظاہرین نے راولپنڈی سے اسلام آباد کا رخ کیا۔ راستے میں انہیں کہیں بھی روکا نہیں گیا۔ اسلام آباد پہنچ کر مظاہرین نے اب پارلیمنٹ کا گھیراؤ کر لیا ہے، شارع دستور پر موجود ہیں، اور وہاں پر جو ٹرک انہیں لیڈ کر رہا ہے اس کی جانب سے اناؤنسمنٹ کی گئی ہے کہ یہ ان کی منزل ہے، وہ یہیں پر رکیں گے جب تک ان کے مطالبات پورے نہیں کیے جاتے۔ اب یہ خبر آئی تھی کہ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کے سربراہی میں ایک وفد ہے جو ان سے مذاکرات کے لیے آ رہا ہے، اور اب یہ آپ کو خبر دے رہے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے اسٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے کہ حکومت نے اسلام آباد میں فوج طلب کر لی ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل عاصم سلیم بازرہ کا یہ کہنا ہے کہ فوج نے اسلام آباد میں ریڈ زون اور صورتحال کو سیکیور بنانے اور صورتحال پر قابو پانے کے لیے فوج کو طلب کرنے کی درخواست کی ہے۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ کچھ دیر پہلے یہ اطلاعات آ رہی تھی کہ جو جلاؤ گھیراؤ کیا گیا ہے، جو پتھراؤ کیا گیا ہے، اس سے میٹرو سٹیشنز کو توڑا گیا ہے اسلام آباد میں۔ اس کے علاوہ جو کنٹینر رکھے گئے تھے رکاوٹ کے لیے، انہیں آگ لگا دی گئی ہے۔ تقریباً 5-6 کنٹینرز کو وہاں پر آگ لگائی گئی ہے، اور جو پارلیمنٹ ہاؤس کا جو جنگلہ ہے جسے پہلے بھی ایک بار عبور کیا گیا ہے، اس کے باہر یہ بڑی تعداد میں مشتعل مظاہرین موجود ہیں۔ اسلام آباد سے آپ کو خبر دیں، اسلام آباد کے ریڈ زون میں مشتعل افراد جلاؤ گھیراؤ کیا گیا ان کی جانب سے، اور اب ڈی جی آئی ایس پی آر کا یہ کہنا ہے کہ حکومت نے اسلام آباد میں فوج کو طلب کر لیا ہے صورتحال پر قابو پانے اور ریڈ زون کو محفوظ بنانے کے لیے فوج کو طلب کیا گیا ہے۔ اسلام آباد میں صورتحال پر قابو پانے اور اسلام آباد میں ریڈ زون کو محفوظ بنانے کے لیے حکومت نے فوج کو طلب کر لیا ہے۔ اسلام آباد کے ریڈ زون میں مشتعل افراد کی جانب سے پتھراؤ کیا گیا، جلاؤ گھیراؤ کیا گیا، لاٹھی اور ڈنڈے اٹھائے۔ یہ بڑی تعداد میں مظاہرین یہاں پر موجود ہیں، اور جیسے ہمارے رپورٹر وقار ستی نے ہمیں بتایا کہ اور بھی بہت سارے مظاہرین ہیں جو یہاں پر پہنچ
पहुंच रहे हैं इन ऐलानात के बाद कि यहाँ पर फौरी तौर पर पहुंचा जाए, और अब हुकूमत ने फौज को तलब कर लिया है। ये बताया गया है डीजी ISPR की जानिब से, जिन्होंने अब से कुछ देर पहले ये स्टेटमेंट जारी किया है। रेड जोन जो कि जहां पार्लियामेंट हाउस की इमारत वाक़ है, अहम इमारतें मौजूद हैं। अब रेड जोन की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए और सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से फौज रिक्विजिशन कर ली गई है, फौज तलब कर ली गई है, जो कि इस सूरत हाल को यकीनी बनाएगी। आज शाम से ये मजमा मुजाहिरीन की एक तादाद थी जो आई है पार्लियामेंट हाउस की जानिब, जो अब डी चौक पर कब्जा कर चुके हैं, हर तरफ मौजूद हैं। इंतजामिया की जानिब से पसपाई इख्तियार की गई, मुजाहिरीन के हाथों में डंडे थे, सड़क पर मुख्तलिफ जगहों पर टायर जलते दिखाई दिए और नारे लगाए जाते रहे। उनकी जानिब से अपने ट्रक से यह ऐलान किया गया कि मुजाहिरीन मुज़ाकरात करना चाहते हैं। ये मनाजिर आप देख रहे हैं, पाक फौज के दस्ते अब पहुंच रहे हैं इस्लामाबाद के रेड जोन। आप देख सकते हैं ये मनाजिर रेड जोन के, जहां पर पाक फौज के दस्ते अब पहुंचना शुरू हो गए हैं। हुकूमत ने पाक फौज को इस्लामाबाद की सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए तलब किया, ये कहा गया डीजी ISPR की जानिब से। और अब जो आप मनाजिर देख रहे हैं, आप देख सकते हैं कि फौज के दस्ते इस्लामाबाद में रेड जोन को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए पहुंचना शुरू हो गए हैं। इस्लामाबाद के रेड जोन में इस वक्त मौजूद हैं मुजाहिरीन, जो कि कांस्टेबल मुमताज कादरी के चहलम की तकरीब जो कि रावलपिंडी में हुई, उस वहाँ से आए और तमाम रास्ते, तमाम रुकावटें अबूर करते हुए इस्लामाबाद के डी चौक पहुँच गए। उनके ट्रक से ये ऐलानात किए जा रहे थे कि पार्लियामेंट हमारी मंजिल है, हम वहाँ पहुँचेंगे। और पार्लियामेंट हाउस के एंड सामने पहुँच गए। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा जियो न्यूज़ वकार सत्ती, उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे। वकार, अब हुकूमत की जानिब से फौज को तलब कर लिया गया है, फौज के दस्ते पहुंचना शुरू हो गए हैं। हम इस वक्त अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं नाजरीन को, आप क्या अपडेट करेंगे? जी बिल्कुल ऐसा ही है कि फौज जो है वो उसने अभी आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पहुंच रही है, जिसने जो हसास इमारतें हैं, जो तंसीबात हैं, उनकी वो हिफाजत करनी है, उसकी सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे फौज आई है। लेकिन जो मुजाहिरीन हैं उनकी तादाद में भी इजाफा हो रहा है। और अब ये तो ये की जा रही है कि जो पार्लियामेंट हाउस और उससे मुल्का जो इमारतें हैं, सुप्रीम कोर्ट, अवान सदर, सेक्रेटेरिएट और इस तरह की दीगर इमारतें, वहाँ पे ये फौज वो तैनात होगी। और बाकायदा जो मुज़ाकरात हैं वो भी अभी वो चल रहे हैं, और अभी जो इनकी डिमांड्स हैं वो लेके हुकूमत को वो दी जाएंगी। लेकिन यहाँ से मुसलसल ये ऐलान किया जा रहा है इनके कंटेनर से कि हम अब तोड़ फोड़ नहीं करेंगे और हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, हम बातचीत करना चाहते हैं। और ये धरने का भी उन्होंने ऐलान किया है कि हम जब तक हमारी बातचीत मुकम्मल नहीं होती, हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते, हम यहीं पे बैठे हैं, हम यहीं से जाएं। वकार, ये भी बताइए कि आप कह रहे हैं और भी मुजाहिरीन हैं जो इस तरफ आ रहे हैं, अब जो लोग एंटर हो रहे हैं इस्लामाबाद में, क्या अब उन्हें रोकने के लिए कोई हिकमत अमली बनाई गई है या अब भी वो आजाद हैं? देखिए, अभी जो ये बाराको वाली साइड है वो बंद की हुई है, लेकिन जो इस्लामाबाद और पिंडी वाली साइड है वो खुली हुई है। जो मेन मरी रोड है उसके ऊपर से लोग फैजाबाद से होते हुए वो आ रहे हैं। जो लोग 4 बजे वहाँ लियाकतबाद से पैदल आए थे वो भी अब आ रहे हैं। अब तो गाड़ियों में भी लोग शुरू हो गए हैं, मोटरसाइकिलों पे, साइकिलों पे और छोटी बड़ी गाड़ियों पे भी लोग यहाँ आना शुरू हो गए हैं। और इनकी जो तादाद है मैं देख रहा हूँ कि 2 घंटे से कि मुसलसल क्या हम ये कह सकते हैं, क्या हम ये कह सकते हैं कि इंतजामिया की जानिब से ये पॉलिसी अपनाई गई कि रेजिस्टेंस ना की जाए, मुजाहमत ना की जाए, टकराव ना हो मुजाहिरीन का और पुलिस का? देखिए, सबसे पहली मज़ामत आज हुई थी तकरीबन 4:30-5 बजे चांदनी चौक रावलपिंडी का जो एरिया है वहाँ पे शेलिंग हुई थी। छोटा लाठीचार्ज भी थोड़ी तादाद में वहाँ पे हुआ था, लेकिन आगे मुजाहिरीन की तरफ से ऐसी मज़ामत थी कि पथराव इतना शदीद था और उनकी तादाद इतनी ज्यादा थी कि पुलिस को फसपाई इख्तियार वो करनी पड़ी। उसके बाद इस्लामाबाद में जब वो दाखिल हुए तो बिल्कुल किसी किस्म का उन्हें वो रुकावट का सामना नहीं था। हल्की जो है वो शेलिंग हुई थी, लेकिन जो डी चौक से जब वो करीब आए, जो चाइना चौक से लेके तो और डी चौक के दरमियान आधे किलोमीटर का जो एरिया है, तकरीबन 1.5 घंटा वहां पर आंसू गैस और पथराव का तबादला हुआ। और उसके बाद वो आए, जो मुजाहिरीन ने खुद जो कंटेनर्स थे, जो आखिरी बैरिकेड, आखिरी रुकावट थी डी चौक में, उनको खुद वो चलाया और चला के साइड पे किया और साइड पे जाके उनको आग लगा दी। तकरीबन 4 से 6 कंटेनर हैं जो हमने वो दिखाए हैं, जो फुटेज हमारे पास जो चल रही है, 4 से 6 कंटेनर हैं जिनको मुकम्मल तौर पर। ये बताएगा कि अब कौन कौन सी इस्लामाबाद में अहम इमारतें हैं जहां पर फौज तैनात की जाएगी, जिसकी हिफाजत अब फौज करेगी? पार्लियामेंट हाउस है, इसके अलावा अवाने सदर है, इसके अलावा जो
सेक्रेटेरिएट है ये, और शाहराह दस्तूर के ऊपर तकरीबन तमाम हमारे वफाकी इदारे हैं, अहम इदारे हैं जिनकी अमानतें यहाँ वो मौजूद हैं, इनकी हिफाजत के लिए यहाँ पर आई है। और अब तो ये है कि मुजाहिरीन ये भी ऐलान कर रहे हैं कि हम इससे आगे नहीं जाएंगे, हमारा ये मंजिल थी, यहाँ पे हम आगे हैं। लेकिन जो वो इमारतें हैं, जो ये सारा एरिया मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे उनकी आहिस्ता आहिस्ता जो वो जवान है वो कंट्रोल आहिस्ता आहिस्ता संभाल रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, क्या पार्लियामेंट हाउस का जंगला भी अबूर करने की कोशिश की गई कुछ मुजाहिरीन की जानिब से? बिल्कुल, उसके साथ हमने जो पिछला धरना देखा था, बिल्कुल उससे आगे जा चुके हैं। ये पार्लियामेंट हाउस का 4 से 6 फुट का जो जंगला है, वो कोई इतनी बड़ी बैरिकेड, इतनी बड़ी रुकावट नहीं है जहाँ पे इतने बड़े बड़े कंटेनर्स उन्होंने हटा दिए। ठीक है, वकार सती हमारे साथ ही टेलीफोन लाइन पर मौजूद रही है। हम अपने नाजरीन को बताएं कि मुजाहिरीन और इंतजामिया में बाज़ाब्ता मुज़ाकरात का आगाज हो गया है। इस्लामाबाद की इंतजामिया ने मुजाहिरीन से मुज़ाकरात के लिए राब्ता किया, इसी पर बात करेंगे। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अयाज अकबर यूसुफजई से। अयाज, कौन मुज़ाकरात करने पहुंचा है? जी बिल्कुल, ये जो मुजाहिरीन इस वक्त रेड जोन के अंदर मौजूद है, उनकी तरफ से मुफ्ती आबिद जो है, उन्होंने इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर कैप्टन साहब मुश्ताक अहमद और एसएसपी इस्लामाबाद साजिद कैनी के साथ बाज़ाब्ता जो है वो मुज़ाकरात का आगाज कर दिया है। और मुज़ाकरात का पहला दौर इस शर्त पे कामयाब हुआ है कि वो यहाँ पर बैठ जाएंगे, धरना दे सकते हैं, लेकिन मजीद आगे पेशरफ्त नहीं करेंगे। मुजाहिरीन ने अपनी ही सिक्योरिटी एसार जो है वहाँ से कायम कर दी और अपने लोगों को ये बता दिया कि मजीद वो किसी चीज को हाथ नहीं लगाएंगे, कोई तोड़ फोड़ नहीं करेंगे। आप कह रहे हैं कि इन मुजाहिरीन को धरना देने की इजाजत दे दी गई है इंतजामिया की जानिब से? जी बिल्कुल, मुज़ाकरात ने पहले सख्ती के हमें जो है यहाँ पर बैठने की इजाजत दी है, क्योंकि मॉब इतना ज्यादा यहाँ मुश्तइल हो चुका था, तो इंतजामिया ने इनको यहाँ पर आर्जी तौर पर बैठने की इजाजत दे दी है, लेकिन इस शर्त पे कि ये आगे मजीद पेशरफ्त नहीं करेंगे और किसी किस्म की तोड़ फोड़ नहीं करेंगे। लेकिन मजीद मुज़ाकरात के लिए उन्होंने कहा कि जो इनकी मरकजी लीडरशिप जो इस वक्त डी चौक तक नहीं पहुंच सकी, वो रास्ते में है और मजीद जो मुज़ाकरात किए जाएंगे, जिसमें सरवत कादरी और हनीफ कुरैशी के साथ साथ दूसरी मरकजी क़यादत जो है वो यहाँ जब पहुंचेगी तो मजीद मुज़ाकरात वो करेंगे। लेकिन कह रहे हैं कि ये यकीन दहानी ली गई है कि मजीद तोड़फोड़ नहीं की जाएगी, लेकिन अब तक जो तोड़फोड़ हो गई है उस हवाले से कोई बात हुई नहीं अभी, क्योंकि इस मॉब को कंट्रोल करना है और किसी तरीके से रेड जोन को क्लियर कराना है, तो अभी इसी में गनीमत जानेंगी इस्लामाबाद इंतजामिया के किसी तरीके से इन मुश्तइल अफराद को कंट्रोल किया जाए और उनको इस जगह तक महदूद किया जाए, क्योंकि फौज को भी यहाँ पर बुला लिया गया है। लेकिन क्योंकि आगे ही काफी ज्यादा रेड जोन में ये मुजाहिरीन पहुंच चुके हैं, तो इस्लामाबाद में यहाँ पर इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर की ये कोशिश है कि किसी तरीके से इनको यहाँ पर कूल डाउन कराया जाए। अच्छा, उसके बाद ये मुज़ाकरात कामयाब हो और उनको यहाँ से निकाला जाए। ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे, आपने बताया मुफ्ती आबिद की सरबराही में कैप्टन रिटायर्ड मुश्ताक अहमद के डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद, उनसे मुज़ाकरात हुए, तो मरकजी क़यादत क्या हिस्सा नहीं है मुजाहिरे का या पीछे है? अभी पीछे है, अभी पहुंचे नहीं है यहाँ पर वजह, क्योंकि काफी ज्यादा ये यहाँ पर शेलिंग हुई, शेलिंग की वजह से डिस्पर्स हुए। जो मरकजी क़यादत थी वो शेलिंग की वजह से पीछे रुक गई, वो इनके आगे जो फ्रंट लाइन थी वहां तक नहीं पहुंच सके। सो यहाँ पर इतनी ज्यादा मिकदार में शेलिंग की गई कि यहाँ पर लोगों के लिए यहाँ पर सांस लेना भी मुश्किल हो चुका था। तो अभी यहाँ पर शेलिंग भी रोक दी गई है, पुलिस की तरफ से किसी किस्म की मुजामत भी नहीं हो रही। और यहाँ पर जो मुफ्ती आबिद यहाँ पर धरना दिए बैठे हैं यहाँ मुजाहिरीन की तरफ से, उनकी ये गारंटी दी गई है कि हम यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ से हम आगे नहीं जाएंगे और किसी किस्म की किसी चीज को आग नहीं लगाएंगे, किसी बिल्डिंग में दाखिल होने की कोशिश नहीं करेंगे और किसी भी अमलाक को इसके बाद नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन इस बारे में बात हुई है मुज़ाकरात में, या आप अगर बता सकें कि जो मरकजी क़यादत अभी तक यहाँ पर नहीं पहुंची है, उन्हें इल्म है कि उनके आने से पहले यहाँ पर क्या कुछ हो चुका है? जी बिल्कुल, तमाम मामलात उनके नोटिस में है और क्योंकि ये चीजें इतनी ज्यादा शायद प्लान नहीं थी जिस तरीके से हो चुकी है, लेकिन क्योंकि अब ये मुजाहिरीन यहाँ पर दाखिल हो चुके हैं, तो सेफ एग्जिट लेने के लिए भी उनकी मरकजी क़यादत को आके इनको यहाँ से उठाना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पर जब तक ये मरकजी क़यादत पहुंचती नहीं है, यहाँ पर इस्लामाबाद की इंतजामिया ने किसी किस्म की मजामत न करने का फैसला किया है और ये कहा है कि किसी तरीके से इन मुजाहिरीन को यहाँ तक। और अयाज, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, वकार सती जो हमें मुजाहिरों से मुतालिक रिपोर्ट कर रहे थे, उन्होंने ये भी बताया कि जो ट्रक था जो जिससे लीड किया जा रहा था, उससे बार बार ये अनाउंसमेंट की गई कि तोड़फोड़ ना करें, लेकिन मुजाहिरीन ने, जो लोग इसमें मौजूद थे, उन्होंने नहीं सुनी बात। तो अब किस तरह से मुफ्ती आबिद की जानिब से ये गारंटी दी गई है कि अब भी तोड़फोड़ नहीं होगी? इस वक्त जो मुफ्ती आबिद की सरबराही में जो लोग यहाँ पर धरना दिए बैठे हैं, उन्होंने अपनी ही सिक्योरिटी एसार खड़ी कर दी है और उस रेड लाइन के आगे, उस लाइन के आगे किसी भी यहाँ शख्स को, किसी भी जो है वो यहाँ पर जो इनके साथ फर्द है, उनको किसी को आगे जाने की इजाजत नहीं है।
तो अभी यहाँ पर ये भी हमें जरा क्लियर कर दीजिए कि लास्ट लिमिट क्या बताई गई है कि इससे आगे नहीं जा सकते, क्योंकि हमें हमारे नुमाइंदे वकार सती ने बताया कि वो जंगला भी अबूर कर लिया है, जो पार्लियामेंट का जंगला है। पार्लियामेंट हाउस के सामने चौक है, उस चौक तक ये पहुंच चुके हैं, अभी अंदर बिल्डिंग के अंदर नहीं जा रहे हैं और उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि जंगले से ये पीछे ही रहेंगे। जो लोग जंगला प्लान के अंदर गए थे वो वापस आ चुके हैं और वहां पर मुफ्ती यहाँ पर जो आबिद है उन्होंने ये अनाउंसमेंट भी किया है कि तमाम। बहुत शुक्रिया। अयाज अकबर यूसुफजई हमें बता रहे थे कि मुफ्ती आबिद जो मुजाहिरीन की जानिब से मुज़ाकरात के लिए आए, उन्होंने गारंटी दी है कि अब मुजाहिरीन जंगले को अबूर नहीं करेंगे और मुजाहिरीन से ही बचाने के लिए और आगे ना बढ़ने के लिए खुद इनकी अपनी एक सिक्योरिटी की टीम सामने खड़ी होगी। हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफी और तज्जियाकार मजहर अब्बास साहब। मजहर अब्बास साहब, क्या हुकूमत इस सारी सिचुएशन को जज नहीं कर सकी और अब आगे सूरत हाल क्या होती दिखाई दे रही है आपको? देखिए, बड़ी ताज्जुब की बात है कि आज उनको मालूम था कि पिंडी में एक बड़ा इज्तिमा होने जा रहा है। उसके सिलसिले में इस्लामाबाद और पिंडी में जो सिक्योरिटी होनी चाहिए थी वो जिस तरह हंगामा आराई इस्लामाबाद में हुई, इससे तो लगता है कि इंतजामिया मुकम्मल तौर पे या तो इसको समझ नहीं सकी या उनके पास इस किस्म की कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट नहीं थी। ये यहाँ तक रेड जोन जिसके बारे में वजीर दाखिला और वजारत दाखिला अक्सर ये कहती रहती है कि इसमें किसी को दाखिल नहीं होने दिया जाएगा, तो वो तो इस वक्त इस सूरत हाल में थे मुजाहिरीन कि अगर वो पार्लियामेंट में घुस के ऐवान सदर में घुस के आग लगाना चाहते तो आग लगा देते वो। और जब उन्होंने मेट्रो बस स्टॉप वगैरह सबको आग लगा दी तो आप उनसे उस वक्त मुज़ाकरात करने आ रहे हैं, उस वक्त आप फौज को तलब कर रहे हैं, उस वक्त उनको अलाउ कर रहे हैं कि अब वो धरना दें। धरने का मतलब ये कि उनके मजीद साथी वहां आ जाएं। तो मेरा ख्याल है इससे ज्यादा नाकामी इंतजामिया की इसमें नजर नहीं आती। जी, बहुत शुक्रिया मजहर अब्बास साहब आपका। मजहर अब्बास साहब बता रहे थे जो वाकया पेश आया इस्लामाबाद में, उस हवाले से तज्जिया दे रहे थे। इस्लामाबाद से हमने आपको खबर दी कि अब मुजाहिरीन की जानिब से मुफ्ती आबिद ने मुज़ाकरात किए हैं डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद और SSP इस्लामाबाद से, और अब जब तक मरकजी क़यादत यहाँ नहीं पहुंचेगी एक गारंटी दी गई है मुजाहिरीन की जानिब से कि वो जंगले से अबूर नहीं करेंगे। एक बार फिर हम आपको लाहौर की सूरत हाल से अपडेट करें। गुलशन इकबाल पार्क में धमाके से जाँ बहक अफराद की तादाद बढ़ती हुई 63 तक जा पहुंची है। पंजाब हुकूमत के तर्जुमान का कहना है कि धमाके से जख्मी होने वाली की तादाद भी 300 से तजावुज कर गई है। 63 अफराद इसमें जाँ बहक हुए हैं। इंतहाई दुख के साथ आपको हम ये लाहौर से खबर दे रहे हैं। गुलशन इकबाल पार्क में आज धमाका हुआ शाम 6:40 पर और जाँ बहक होने वालों में बड़ी तादाद खवातीन और बच्चों की है। और इंतहाई दुख के साथ आपको बताएं कि डेथ टोल बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे हमारे पास इत्तलात आ रही हैं अस्पतालों से, यही बताया जा रहा है कि जो अफराद जख्मी है उनकी हालत इंतहाई तशवीशनाक है और अब जाँ बहक अफराद की तादाद 63 हो गई है। मियां अस्पताल, शेख जायद अस्पताल, जनरल अस्पताल लाहौर, जिना अस्पताल लाहौर, इसके अलावा दीगर जितने अस्पताल रास्ते में हैं, करीब मौजूद हैं अल्लामा इकबाल टाउन से, वहाँ भी जख्मियों को ले जाया गया है। हमारी नुमाइंदा मिसर से कुछ देर पहले हमें बता रही थी कि जख्मी जो लाए गए हैं उनमें से कुछ की हालत तशवीशनाक भी है। उन्हें एमरजेंसी वार्ड्स में रखा गया है, उनकी जान बचाने की कोशिश की जा रही है। कुछ को गहरे जख्म आए हैं, उनका ऑपरेशन किया जा रहा है, सर्जरी थिएटर में वो मौजूद हैं। तो इस मौके पर सूरत हाल परेशान कुन ज़रूर है, लेकिन जिस तरह के लाहौर के शहरियों से अपील की गई कि खून के एहतियात दें, अस्पतालों में लोग पहुँचना शुरू हुए, खून के एहतियात उनकी जानिब से दिए गए और अब भी जो अमला है वो मुस्तैदी से काम कर रहा है। तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। दुख और अफसोस की इंतहा ये है कि मासूम बच्चों और औरतों को निशाना बनाया गया। किसी भी इंसान की जान लेना इंतहाई अफसोसनाक अमल है, लेकिन मासूम बच्चों और औरतों को निशाना बनाना इस जैसा वहशियाना अमल शायद कोई हो सकता हो। इंतहाई अफसोसनाक और दिलखराश वाक़या, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या आज लाहौर में पेश आया और जो इस्लामाबाद की सूरत हाल है बुलेटिन में उससे मुतालिक भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। आगे बढ़ते हुए आपको खबर दें कि वर्ल्ड T20 में पाकिस्तान की खवातीन क्रिकेट टीम को इंग्लैंड के हाथों शिकस्त हो गई है। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 149 रन का हदफ दिया था, लेकिन पाकिस्तानी वुमेन टीम 80 रन पर आउट हो गई। इस तरह पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई
नहीं कर सकी। बुलेटिन में एक बार फिर हम बात करेंगे। इंतहाई अफसोसनाक आज वाकया लाहौर में पेश आया। 6:40 पर वहां पर पार्क में धमाका हुआ और खुदकुश धमाका ये बताया गया है। जब जोरदार धमाके की आवाज़ सुनी गई तो जितने ज़्यादा लोग वहां पर मौजूद थे इंतहाई परेशान हुए और भगदड़ मच गई वहां पर, जिसके बाद चीज़ें क्लियर होना शुरू हुई और पता चला कि खुदकुश धमाका था। हलाकतों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। जो आखिरी अपडेट हम तक आई है उसके मुताबिक 63 अफराद इस वाक़े में जाँ भाग हुए हैं। ज़्यादा तादाद बच्चों की, ख़वातीन की बताई जा रही है। इंतहाई मासूम बच्चों को निशाना बनाया गया है जो इतवार को तफरी की गर्ज से पार्क गए थे, अपनी फैमिलीज़ के साथ गए थे और उन्हें निशाना बनाया गया है। झूलों के करीब धमाका किया गया है जिससे ज़्यादा जो निशाना बने हैं वो बच्चे निशाना बने हैं और बताया जा रहा है कि 300 से ज़ायद अफराद इसमें ज़ख्मी हुए हैं और ज़्यादातर की हालत तशवीशनाक है। अस्पतालों में एमरजेंसी नाफिज करके इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी गई है। जिनको मामूली जख्म आए हैं, जो शदीद जख्मी हैं, उन्हें ऑपरेशन थिएटर्स मुंतकिल किया गया है। उनकी जान बचाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही इस वक्त बहुत सारे लोग जिनके अहल खाना इस इलाके में मौजूद थे और अब उनसे रब्ता नहीं हो रहा, वो परेशान हैं और मुख्तलिफ अस्पतालों में अपने प्यारों को ढूंढ रहे हैं। एक मुश्किल का सामना लाहौर में अलावा इकबाल टाउन के इलाकों में रहने वाले इन अफराद को भी है जो अपने प्यारों को तलाश कर रहे हैं जिनसे राब्ता नहीं हो पा रहा। जियो न्यूज़ के अहमद फराज नुमाइंदे जिन्होंने पहले भी हमें अपडेट किया वहां पर सूरत हाल से मुतालिक और सिक्योरिटी आज किस तरह से थी, अमूमन सिक्योरिटी किस तरह होती है, उस तरह से भी उन्होंने हमें बताया। उनके पास दोबारा चलते हैं। अहमद, इस वक्त आपके पास क्या ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल ही, यहाँ पर आर्मी की मेडिकल कोर भी यहाँ पर पहुंच चुकी है। अभी कुछ देर पहले यहाँ पर जनरल तारिक अमान भी तशरीफ लाए थे, उनके साथ कुछ जवान मौजूद थे। उन्होंने आगे जाए वकूआ का मुआयना किया है। उनके साथ कुछ फौजी जवान भी थे, उन्होंने खुद आगे क्राइम सीन का यहाँ पे मुआयना किया है। अभी भी यहाँ पर पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी के जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है, एक्सपर्ट, वो यहाँ से शवाहिद इकट्ठे कर रहे हैं। और अभी तक की इतलात के मुताबिक अभी तक जो पुलिस अफसरान का जो कहना है, जो यहाँ पे जिला इंतजामिया का जो कहना है कि ये जो वाक़या है ये टाइम डिवाइस नहीं था, ये खुद कुछ धमाका था। तो अहमद, क्या अब तक ये चीज क्लियर हो सकी है कि जो खुदकुश हमलावर आया था वो पैदल आया था या गाड़ी में आया या मोटरसाइकिल में आया? कोई ये अब इस हवाले से कोई चीज क्लियर हुई है? अच्छा, उसमें इस तरह है कि हमने हमेशा कई वाक़या जो है वो कवर किए हैं, खासतौर पर ये सुसाइड धमाके। तो इसमें सुसाइड हमला, जो सुसाइड बॉम्बर होता है उसको सहूलत कार जो होते हैं ना, वो मोटरसाइकिल पे या किसी भी ट्रांसपोर्ट के जरिए वो पहुंचाते हैं। और माजी में भी इस तरह के जितने भी वाक़यात हुए हैं उसमें यही आया है कि सुसाइड बॉम्बर को जब किसी जगह पे पहुंचाया जाता है तो सहूलत कार उसको वहां पे उतार कर, सहूलत कार जो होते हैं उनके ट्रांसपोर्ट भी उनके यानी कि उनके जिम्मे होती है, लेकिन जो धमाका खेज मवाद होता है वो टीम और होती है। इस तरह ये मुख्तलिफ जो है इन्होंने अपने आप बांटे होते हैं, अपनी ड्यूटीज बांटी होती हैं, जिसमें ट्रांसपोर्ट, धमाका खेज मवाद, इस तरह की जो चीजें होती हैं उनके जरिए इनको पहुंचाया जाता है। जैसे तक आपको ये सवाल है कि ये अंदर कैसे आया, तो मैंने ये बता दूं कि ये कई कनालों पर मुहित ये पार्क है और यहाँ पर कुछ दीवारें वो 3.5 फुट की हैं, कुछ 5 फुट की हैं। तो ये पे तो जंगले भी नहीं लगे हुए, और अगर जंगले लगे हुए तो जंगलों के ऊपर खासदार तारे भी नहीं है। यहाँ पर कोई गैर मामूली सिक्योरिटी थी, सिक्योरिटी भी कोई इतनी खास नहीं थी, कोई इतने खास गार्ड, यहाँ पे 3 गार्ड नहीं थे जिनके पास कोई वेपन होता, कोई मेटल डिटेक्टर या वॉक थ्रू गेट होता। तो ये तो एक तफरी गाह थी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर टिकट जो है वो बिल्कुल नहीं थी, इसलिए लोगों की तादाद भी यहाँ पर ज्यादा होती। कोई खास सिक्योरिटी नहीं थी, सिक्योरिटी के इंतहाई नाकिस इंतजामात, कोई गार्ड्स नहीं थे, कोई गैर मामूली सिक्योरिटी के इंतजामात नहीं किए गए थे। और आज 6:40 पर लाहौर में ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया। अस्पतालों में क्या सूरत हाल है जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ उम्मे फरवा हमारे साथ मौजूद हैं। उम्मे फरवा, मजमूई तौर पर लाहौर के अस्पतालों में जहां जख्मी लाए गए हैं, सूरत हाल से हमें आगाह कीजिएगा। जो हॉस्पिटल्स रहे उनमें अब तक तो तकरीबन 150 से ज्यादा जख्मी जो हैं वो लाए जा चुके हैं और उनकी एटीपी इमदाद जो है इस वक्त जारी है। जिन्हें ऑपरेशन की जरूरत है वो इस वक्त ऑपरेशन थिएटर्स के अंदर उनके ऑपरेशन हो रहे हैं और जिन्हें यानी इब्तदाई तौर पे तिब्बी इमदाद जिस तरह से दी जानी चाहिए वो दी जा रही है। तमाम हॉस्पिटल्स में एमरजेंसी नाफिज है, तमाम अमला मौजूद है, डॉक्टर्स मौजूद हैं जो कि जख्मियों की ट्रीटमेंट जो है इस वक्त कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो सबसे ज्यादा जख्मी लाए गए हैं वो जिनाह हॉस्पिटल में है। जिनाह हॉस्पिटल के अंदर जो जख्मियों की तादाद है वो 80 के करीब हो चुकी है, जबकि जो हलाकतें हैं यानी सबसे ज्यादा जो डेड बॉडीज लाई गई हैं वो 45 के करीब डेड बॉडीज जो है इस वक्त जिनाह हॉस्पिटल में लाई जा चुकी हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ हॉस्पिटल में लाई गई और अब तक हलाकतों की तादाद जो है वो 63
63 जो है वो हो चुकी है और मजीद हलाकतों का खदशा जो है वो जाहिर किया जा रहा है। उसकी वजह ये है कि जो जख्मी हॉस्पिटल में लाए गए हैं कुछ की ऐसी हालत है कि जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उनके बारे में बचना शायद नामुमकिन है। तो इस वजह से जख्मियों के साथ साथ जो जख्मियों में से जो हलाकतों की तादाद जो है वो बढ़ने का खदशा जो है जाहिर किया जा रहा है। कई जख्मी ऐसे जिनकी हालत तशवीशनाक है। अब तक जाँ बहक होने वाले अफराद के नामों की लिस्ट तरतीब दी गई है ताकि उनके प्यारे जो वहाँ मौजूद हैं उन्हें कंफर्मेशन मिल सके। जी, जो डेड बॉडी के हवाले से लिस्ट है वो अभी तक तरतीब नहीं दी जा चुकी। उसकी वजह ये है कि जो जख्मी है वो इतनी बड़ी तादाद में आ रहे हैं कि जब भी जख्मी लाया जाता है तो अमले का और डॉक्टर की भरपूर कोशिश होती है कि जो जिंदा है उनको ट्रीटमेंट देके उनकी जानें जो है वो बचाई जा सके। इसलिए अभी तक कोई भी जो हॉस्पिटल है अभी तक प्रॉपर तरीके से वो लिस्ट नहीं बना सका। उनका यही कहना है कि जैसे थोड़ा सा उनको वक्त मिलेगा वो यानी कि जो जख्मी है उनकी जानें बचानेंगे। बहुत शुक्रिया। उम्र फरवा हमें बता रही थी मुख्तलिफ अस्पतालों की सूरत हाल लाहौर में। उन्होंने बताया कि तमाम अस्पतालों के अगर फिगर्स बताए जाएं तो 63 अफराद जाँ बहक हुए हैं और 300 से ज्यादा अफराद के जख्मी होने की भी इत्तलात है। कई अफराद ऐसे हैं जिनकी हालत तशवीशनाक है। लाहौर की सूरत हाल से आपको अपडेट करते रहेंगे। इस वक्त आपके लिए चलेंगे इस्लामाबाद के डी चौक, जहां मुजाहिरीन की जानिब से अब ये ऐलान किया गया है कि वो मजीद तोड़ फोड़ नहीं करेंगे, मजीद आतिशबाजी नहीं करेंगे, अमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, पार्लियामेंट के अंदर नहीं जाएंगे, इंतजार करेंगे उनके मरकजी कायदीन जो पीछे हैं उनके आने का और अपने मुतालबात फिर हुकूमत के सामने रखेंगे। उस वक्त तक मजीद कोई तोड़ फोड़ नहीं की जाएगी। ISPR की जानिब से बताया गया कि हुकूमत ने इस्लामाबाद में फौज को तलब कर लिया। सूरत हाल पर काबू पाने और रेड जोन को महफूज बनाने के लिए हुकूमत की जानिब से फौज को तलब किया गया और कुछ देर पहले हमने आपको मनाजिर दिखाए कि फौज के दस्ते इस्लामाबाद में रेड जोन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए पहुंचना शुरू हो गए थे। ये कुछ देर पहले के मनाजिर हैं जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मुजाहिरीन की जानिब से मुफ्ती आबिद ने अब से कुछ देर पहले डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद और SSP इस्लामाबाद से मुज़ाकरात किए और यकीन दिलाया कि कोई जलाओ घिराओ और तोड़ फोड़ नहीं की जाएगी। अयाज अकबर यूसुफजई इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अयाज, क्या डेवलपमेंट हुई है पिछले 10 से 15 मिनट में? जी बिल्कुल यही डेवलपमेंट है कि मुफ्ती आबिद की सरबराही में जो यहाँ पर मुज़ाकरात का पहला दौर हुआ डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर मुश्ताक अहमद के साथ, उसकी कामयाबी अभी तक ये है कि मजीद किसी किस्म की कोई यहाँ पर एक्टिविटी अब इस तरह की नजर नहीं आ रही जो इससे पहले आधा घंटे पहले यहाँ पर जलाओ गिराओ और यहाँ पर काफी ज्यादा एक यहाँ पर जंग का समा था। वो अभी काफी चीजें जो है वो कूल डाउन हो चुकी हैं और यहाँ पर धरने दिए बैठे हैं मुजाहिरीन और अपनी मेन जो मरकजी लीडरशिप जो पीछे आ रही है उनका इंतजार हो रहा है। और यहाँ पर इस्लामाबाद इंतजामिया के लोग भी मौजूद हैं जो मेन लीडरशिप के साथ इन मुजाहिरीन के जो है उनके साथ मुज़ाकरात करेंगे। और कितनी देर में बताया जा रहा है कि मेन लीडरशिप भी है वो भी पहुंच जाएगी और फिर उनसे मुज़ाकरात शुरू होंगे? जी अभी कुछ वक्त का टाइम नहीं हो सकता क्योंकि जो शेलिंग हुई है तो ये बताया जा रहा है कि मेन लीडरशिप उस शेलिंग की वजह से काफी ज्यादा मुतासिर हुए हैं। यहाँ पर कितनी ज्यादा तादाद में यहाँ पर ज्यादा मिकदार में यहाँ शेलिंग हुई कि यहाँ पर काफी ज्यादा लोगों की हालत जो है वो गैर हुई है, तबीयत बहुत ज्यादा खराब हुई। इस मुजाहिरे से पहले और इन लोगों की आमद से पहले क्या ऑफिशियली किसी को इन्फॉर्म किया गया था कि मुजाहिरीन इस्लामाबाद में एंटर होंगे और इस तरह पार्लियामेंट तक पहुंचेंगे? देखिए जी ये तमाम चीजें राबिया कल से यहाँ पर एक आला सतह मीटिंग हुई थी। इस्लामाबाद इंतजामिया की पुलिस के आला हुकाम भी मौजूद थे और उस बात का पहले से ही एक खदशा जाहिर किया जा रहा था कि ये मुजाहिरीन कल आज यानी ये कल ये बात हो रही थी कि ये जब 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद इस्लामाबाद का रुख कर सकते हैं। ये खबर जो है पहले आ चुकी थी कि इस किस्म की कोई एक्टिविटी हो सकती है। रात को ही कंटेनर पकड़कर इस्लामाबाद पुलिस और इंतजामिया ने इस्लामाबाद के दाखिली रस्तों पर लगा दिए थे। उसके बाद सुबह होते ही जो है वो रास्ते भी बंद कर दिए गए, लेकिन ये एक्सपेक्ट नहीं कर इतनी ज्यादा तादाद में ये लोग जो है वो जमा करेंगे। इनकी जो फिगर थी या जो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे बहुत ज्यादा तादाद में यहाँ पर लोग आए। जितनी यहाँ पर नफरी तैनात थी इस मौत को इस पूरे मुजाहिरीन के इसको कंट्रोल करना जो था वो उनके बस में नहीं था। ये भी हमें बताइएगा कि अब से कुछ लम्हों पहले ये मुज़ाकरात हुए हैं और ये जलाओ घिराओ अब मजीद नहीं किया जाएगा इसकी गारंटी दी गई है। ये मुज़ाकरात पहले क्यों नहीं हुए? सबसे बड़ी रुकावट इसमें क्या थी? इन मुजाहिरीन ने पहले इस्लामाबाद के साथ ये बात तय की थी कि हमने किसी किस्म की कोई यहाँ पर हंगामा राई नहीं करनी। यहाँ पर सिर्फ जो है एक दुआ की जाएगी पिंडी में और बारागांव का रुख किया जाएगा। उन्होंने आप जो कह रहे हैं कि ये बात तय की थी कि इस तरह नहीं किया जाएगा, ये कितने बजे की बात है? ये कल की ही बात थी क्योंकि ये मीटिंग जब इस्लामाबाद की आला हुकाम की यहाँ पर इस्लामाबाद में हुई तो ये बात डिस्कस हुई
کہ انہوں نے یہاں اسلام آباد میں نہ آنے کی گارنٹی دی ہے، لیکن کسی قسم کی ریٹن گارنٹی اسلام آباد کی انتظامیہ کے پاس نہیں تھی. وربل گارنٹی ضرور تھی یہاں پر جو لوکل لیڈرشپ ہے. جی یہ ہم آپ سے جاننا چاہیں گے، جب آج فیض آباد کے راستے اور مختلف راستوں سے اسلام آباد میں داخل ہوئے پنڈی سے یہ مظاہرین، تو کیا اعلانات کے ذریعے انہیں روکنے کی کوشش کی گئی؟ کیا انہیں انگیج کرنے کی کوشش کی گئی؟ مرکزی لیڈرشپ کو انگیج کرنے کی کوشش کی گئی کہ وہیں کہیں روک کے مذاکرات کیے جائیں اور معاملات مذاکرات کی میز پر حل کیے جا سکیں؟ جیسے کہ پہلے بھی میڈیا میں یہ بات رپورٹ ہو چکی ہے کہ کنٹینر جو سب سے پہلے کنٹینر تھا اس کے اوپر سے یہ اعلانات بار بار کیے جا رہے تھے کہ مظاہرین جو ہے مشتعل نہ ہوں اور پرامن جو ہے وہ مظاہرین کی جانب سے اشتعال سے روکنا اپنے مظاہرین کو، یہ تو ایک الگ معاملہ ہے، لیکن جب اسلام آباد میں داخل ہو رہے تھے تو کہیں انگیج کرنے کی کوشش کی گئی، گفتگو کی کوشش کی گئی، کوئی اعلیٰ شخصیت اس ساری صورتحال کو مانیٹر کر رہی تھی، کوئی مانیٹرنگ روم بنایا گیا تھا، کوئی ایسی صورتحال آپ کے علم میں آئی ہے؟ کسی قسم کے کوئی مانیٹرنگ روم نہیں تھا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا ایاز اکبر یوسف سے، یہ میں بتا رہے تھے. اور ایسی صورتحال میں جب ایک روز قبل پتا تھا، چہلم تھا، 40 روز تھے، انتظامیہ کو چاہیے تھا، حکومت کی جانب سے یہ کیا جا سکتا تھا. مبصرین کا کہنا ہے کہ پہلے انگیج کیا جاتا، علماء اکرام کو ان کو بٹھا کر آن بورڈ لیا جاتا، اور جب یہ صورتحال گزشتہ روز بتائی گئی کہ اسلام آباد کی جانب مارچ کریں گے، گو کہ مظاہرین کی جانب سے اور ان کے رہنماؤں کی جانب سے اعلان کیا گیا کہ ہم کسی قسم کی توڑ پھوڑ یا جلاؤ گھراؤ نہیں کریں گے. ان کی یقین دہانی اپنی جگہ، لیکن کوئی مانیٹرنگ سیل قائم نہیں کیا گیا جو کہ اس جلوس کو، اس پروٹیسٹ کو مانیٹر کرے اور ہر بدلتی صورتحال پر نظر رکھے. اگر راولپنڈی سے مظاہرین چلتے ہوئے اسلام آباد پہنچے، انہیں کہیں راستے میں انگیج کرنے کی کوشش نہیں کی گئی، کہیں یہ کوشش نہیں کی گئی مذاکرات کیے جائیں، اور اب ڈی چوک میں مذاکرات کا اہتمام کیا گیا. اور اب پاک فوج کے دستے بھی ریڈ زون پہنچ گئے ہیں، کیونکہ کچھ دیر پہلے احکامات جاری کیے گئے حکومت کی جانب سے کہ پاک فوج کے دستے بلائے جائیں اسلام آباد میں، جو کہ ریڈ زون کو سیکیور کر سکیں. اور آئی ایس پی آر کی جانب سے بتایا گیا کہ حکومت نے اسلام آباد میں فوج کو طلب کر لیا ہے. اسلام آباد کے ریڈ زون میں مشتعل افراد نے آج جلاؤ گھراؤ کیا، پتھراؤ کیا، لاٹھی ڈنڈے اٹھائے، بڑی تعداد میں مظاہرین یہاں پر پہنچے، میٹرو سٹیشنز کو آگ لگا دی گئی اور آگے جا کر بھی توڑ پھوڑ کی گئی. جو پارلیمنٹ کا جنگلہ ہے اسے عبور کر لیا گیا، اور وہاں پر موجود لوگوں سے اگر یہ اعلانات بھی کیے جا رہے تھے کہ وہ توڑ پھوڑ نہ کریں، تو بھی ان افراد نے اسے نہیں سنا اور یہ توڑ پھوڑ کی گئی. جو کنٹینرز رکھے گئے تھے رکاوٹوں کے لیے، ان کنٹینرز کو بھی آگ لگا دی گئی. شروع میں تو انہیں روکنے کی کوشش کی گئی جب یہ ریڈ زون میں داخل ہوئے، اور روکنے کی کوشش اس طرح سے کی گئی کہ آنسو گیس کی شیلنگ کی گئی. لیکن کچھ دیر بعد جتنے بھی افراد یہاں پر موجود تھے سیکیورٹی کے لیے، وہ یہاں سے چلتے بنے. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار حامد میر صاحب. حامد میر صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا، بہت شکریہ. چہلم تھا، حکومت کی جانب سے کوئی پیش بندی نہیں کی گئی، کوئی مانیٹرنگ روم نہیں بنایا گیا، کہیں راستے میں انہیں روک کر مذاکرات کی کوشش نہیں کی گئی. دیکھیے، میں آج خود تقریباً 4.5 گھنٹے تک ان مظاہرین میں اور پولیس کے درمیان پھنسا رہا ہوں، اور میں نے آج دیکھا ہے کہ یہ جو پولیس ہے، یہ جو عام شہری جن کا مظاہرین سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کو تو روک رہی تھی، ان کے لیے اس نے رکاوٹیں بھی کھڑی کی ہوئی تھیں، لیکن مظاہرین کے ساتھ یہ پولیس جو ہے اس کا رویہ بہت نرم تھا، سہما سا رویہ تھا، اور ان کو کسی جگہ پہ انہوں نے نہیں روکا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو ممتاز قادری کے چہلم کے سارے جو انتظامات ہیں اور لوگ جو اکٹھے ہو رہے تھے، تو یہ راولپنڈی میں اکٹھے ہو رہے تھے، اور راولپنڈی جو ہے یہ پنجاب کا ایک شہر ہے. بنیادی ذمہ داری جو ہے وہ حکومت پنجاب کی تھی کہ اس کو چاہیے تھا کہ اس کی پیش بندی کرتی، اس پر وفاقی حکومت کے ساتھ مل کر کوئی لائحہ عمل اختیار کرتی. لیکن بہت ہی بدقسمتی کی بات ہے، اور مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پنجاب حکومت نے بالکل اس کو پریمپٹ نہیں کیا، اس کی کہیں پر کسی سطح پر کوئی منصوبہ بندی نہیں کی گئی. حالانکہ جب ممتاز قادری کا جس دن جنازہ تھا، تو اس دن جتنی بڑی تعداد میں لوگ آئے تھے، تو اس کے بعد ان کو محتاط ہونا چاہیے تھا اور ان کو پہلے سے منصوبہ بندی کرنی چاہیے تھی. لیکن ایسے لگتا ہے کہ کیونکہ میڈیا جو ہے اس نے اس واقعے کو زیادہ اہمیت نہیں دی پاکستان کی سلامتی کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے، تو حکومت نے سوچا کہ چہلم پر بھی اسی طرح ہوگا. لیکن آج صورتحال بالکل ڈیفرنٹ ہو گئی، اور جب یہ مظاہرین راولپنڈی سے جب یہ اسلام آباد کی طرف آئے ہیں، تو یہ 6-7 کلومیٹر کا علاقہ ہے، اور
इस पूरे इलाके में पुलिस ने या रेंजर्स ने कहीं पर इनको नहीं रोका, और ये बुनियादी जिम्मेदारी इस्लामाबाद पुलिस की थी। पहले जिम्मेदारी पंजाब पुलिस की थी। पंजाब पुलिस ने एक दो जगह पे इनको हल्का फुल्का रोकने की कोशिश की और उसके बाद इनके लिए रास्ता छोड़ दिया। हामिद मीर साहब, आपको लगता है मंसूबाबंदी की नहीं गई, या जो मंसूबाबंदी की थी वो काम नहीं आई? नहीं, मुझे लगता है कि मंसूबाबंदी बिल्कुल नहीं थी, इसलिए कि मैं आज तकरीबन जो इस्लामाबाद से रावलपिंडी से इस्लामाबाद को आने वाले तकरीबन 6-7 रास्ते हैं, मैं बड़ी मुश्किल से इन तमाम 6-7 रास्ते जो हैं हर तरफ से मैंने दाखिल होने की कोशिश की। हर जगह पे पुलिस जो है वो हमें भी रोक रही थी, आम शहरियों को भी रोक रही थी। लेकिन ये मेरी आंखों देखा हाल है, ये मैंने अपनी आंखों से खुद देखा है कि जब ये मुजाहिरीन उसी रास्ते से, उसी जगह से जहां पे नाका लगा हुआ था, जहां से ये हमें और आम शहरियों को इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होने दे रहे थे, जब वहां पर ये मुजाहिरीन पहुंचे तो पुलिस आगे से हट गई। हामिद मीर साहब, आपको लगता है ये इंस्ट्रक्शंस थी उन्हें या खौफ था? नहीं, मुझे इसका कुछ पता नहीं है, मुझे ये नहीं पता कि इंस्ट्रक्शंस थी या खौफ थी, लेकिन मैं बहुत अफसोस के साथ आपको ये कहूंगा कि मैंने आज 4.5-5 घंटे तक तो देखा है, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान नहीं बल्कि कोई बनाना रिपब्लिक है। कि जिस तरह हम खबरों में सुनते हैं, इंटरनेशनल न्यूज आती है कि सोमालिया के दारुल हुकूमत मोगावेशो पर बागियों ने हमला कर दिया, तो मुझे ऐसे लग रहा था कि इस्लामाबाद जो पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है उस पर कुछ बागी हमलावर हो गए हैं, और आगे स्टेट का कोई इदारा जो है वो उनको रोकने के लिए तैयार नजर नहीं आ रहा था। कोई उसकी मनसूबाबंदी नहीं थी। ना तो पंजाब पुलिस ने कोई आज अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है, पंजाब हुकूमत ने बिल्कुल अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया, और जब वो वफाकी दारुल हुकूमत में दाखिल हुए तो उसके सामने जो वफाकी दारुल हुकूमत की सिक्योरिटी की जिम्मेदार इस्लामाबाद पुलिस है वो भी वहां से भाग गई। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि वो उनको देख के भाग गए, और अब आपने फौज को बुला लिया है, तो हो सकता है कि फौज इस मामले को किसी तरीके से रिजॉल्व कर ले, लेकिन ये बुनियादी जिम्मेदारी तो पुलिस की है। अगर आपने हर मामले में फौज को मुजाहिरीन के सामने लाना है और इस तरह के मामला फौज से तय करवाने, तो ये पुलिस किस बर्थ की दुआ है। तो मेरा ख्याल है कि वजीर आजम नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको अब वजीर आला पंजाब और वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान साहब से पूछना चाहिए कि अगर इतना बड़ा वाकया हो रहा था और आपको पता था कि चैलेंज होने वाला है, तो आपने इसकी मनसूबाबंदी क्यों नहीं की? तो ये मसला इस तरह हल नहीं होगा कि आप मीडिया को कंट्रोल करके तो इस किस्म के वाकयात से आवाम की तवज्जो हटा दें। ये दुनिया जो है बदल चुकी है, और नवाज शरीफ साहब को इस चीज का ख्याल करना चाहिए कि मीडिया को कंट्रोल करके वो लोगों को इस तरह के वाकयात से बेखबर नहीं रख सकते। हामिद मीर साहब, बहुत शुक्रिया, तज्जिया दे रहे थे आज के वाकये पर जो इस्लामाबाद में इस वक्त सूरत हाल है। उनका कहना था कि पंजाब हुकूमत, इस्लामाबाद पुलिस किसी ने अपनी जिम्मेदारी का मुजाहिरा नहीं किया, और वजीर आजम नवाज शरीफ को इस पूरी सूरत हाल का और जिन लोगों ने कोताही बरती है उनका हवाले से नोटिस लेना चाहिए। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक तरफ इस्लामाबाद के मनाजिर हैं जहां पर डी चौक में और पार्लियामेंट के इर्द गिर्द मौजूद हैं बड़ी तादाद में मुजाहिरीन, मुश्तल मुजाहिरीन जिन्होंने जलाओ घिराव किया, पथराव किया, मेट्रो स्टेशन को पर तोड़फोड़ की है, और वहां जो रुकावटों के लिए कंटेनर्स मौजूद थे उन पर आग लगा दी है। कुछ देर पहले मुजाहिरीन की जानिब से मुफ्ती आबिद ने डिप्टी कमिश्नर और एसएसपी इस्लामाबाद से मुज़ाकरात किए हैं और गारंटी दी है कि अब कोई तोड़फोड़ नहीं की जाएगी, अब कोई आग नहीं लगाई जाएगी, जब तक क़यादत नहीं आती मुज़ाकरात दोबारा शुरू नहीं हो जाते। दूसरी जानिब आज इंतहाई अफसोस और दुख भरा दिन रहा। लाहौर में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया, और वहां पर पार्क में जो खुदकुश धमाका किया गया उसमें अब 63 अफराद के जान बहक होने की इत्तलात आ रही हैं। 300 से ज्यादा अफराद जख्मी हैं, जिनमें बच्चों की, खवातीन की बड़ी तादाद शामिल है, और बताया जा रहा है कि कई ऐसे जख्मी हैं जिनकी हालत तशवीशनाक है। इस मुताबिक हम आपको आगाह करते रहेंगे। यहाँ वर्ल्ड T20 से मुतालिक आपको अपडेट करें। ऑस्ट्रेलिया और भारत का मैच जारी है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को जीत के लिए 161 रन का हदफ दिया है। 15वें ओवर्स का खेल जारी है। 94 रन पर भारत की 4 विकेटें अभी तक गिर चुकी हैं। मैच जीतने वाली टीम सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी, जबकि हारने वाली टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। इसलिए इसे क्वार्टर फाइनल भी कहा जा रहा है। मैच से मुतालिक भी हम इस बुलेटिन में आपको अपडेट करते रहेंगे। आज इंतहाई अफसोसनाक वाकया लाहौर में पेश आया है, जहां पर धमाका हुआ, मासूम बच्चों को निशाना बनाया गया, खवातीन को निशाना बनाया गया। झूलों के करीब ये धमाका हुआ, जिसमें अब तक जो इत्तलात आ रही हैं 63 अफराद जाँ बहक हुए हैं, जबकि कई अफराद में जख्मी हुए हैं। इस हवाले से हम जियो में आपको अपडेट करते